So we can give data from over here. That is just we can give it as a raw data, we can say. So raw data we are going to give it as an input over here, and we are going to have some output over here. So let's consider we are having some output over here. So that is what the pipeline is. So what are the steps we generally follow? Let's consider we are having a raw data over here. We have to just clean the data first. So just we can clean the data first. We can clean the data first. So that is what the first step is. So we can clean the data. Then after that, what we can do, we can scale the data. Then not scale exactly, we can first I must say that it is like filling data or handling missing values. So the first step is that handling missing data. So handling missing data, that is the first step. Missing data, that is the first step. And the second step is that let's consider we are going to encode the features, or we can say that it is the encoding step we can have. So that is encoding step we can have. Encoding, feature encoding, that means let's consider we are having some features like we have to convert that into one hot encoder, or like ordinal encoders kind of thing. So that encoding we can do over here. Then after that we can do scale the data. That is what the next step we can do. So we can scale the data over here. We can scale the data, and after scaling data, our data is ready for what we can say, that is training and prediction purpose. So here we can build the model. Here we can build the model. So model means any model, like random forest regression, logistic regression, linear regression, whatever that is. So these are the general steps we follow while turning out your raw data into your output form or prediction purpose. So these are the general steps. If you know, for missing data, we can handle missing data using like fill any kind of functions, fill any kind of function. But there is also one class that is available in sklearn, that is imputer class. Imputer class. Imputer class. So that imputer class also handles this particular thing. For encoder, we have feature encoders available in sklearn dot preprocessing. For scalar, we have standard scalar, and for model, we are having many models over here. If you also observe all these steps, so from all these steps, these three steps contains the functions. Which functions? That is, one of the function is fit and transform. Fit and transform. Fit and transform functions. So this one, that imputer has also fit transform function, then encoder has also fit transform function, then scalar has also fit transform function. So these three steps contains fit transform function, and the final step, that is the model, it contains that is fit and predict model. Fit and predict, it has no transform. Keep in mind, it has no transform that step. It has no transform step. Okay, so that is what it is. Okay, so these are the steps while going through your particular steps of machine learning model, building machine learning models. So the same steps we are going to implement using pipeline. Now what is mean by pipeline is, so pipeline is one class. For example, this is the pipeline class. To this particular class, we are going to provide a raw data. We are going to provide a raw data to this. And then after that, after providing the raw data, this particular class is going to give directly the output of your model. So whatever the steps in between we are having, that we are going to integrate into one object. We are not going to do that many times. Like if you remember, जब हमने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का
हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट किया था, तो वहां पे कैसे था कि आपको देखना पड़ता था कि हाँ ये हमारा ट्रेंड डेटा है, ट्रेंड डेटा को ट्रांसफॉर्म करो इनटू प्रॉपर फॉर्मेट, देन आफ्टर दैट ये हमारा टेस्ट डेटा है उसको भी उसी फॉर्मेट में ट्रांसफर करो सो दैट हम टेस्ट डेटा को भी यूज कर सकते। तो इसके जो भी स्टेप्स थे फॉर ट्रेंड डेटा, द सेम स्टेप्स वी आल्सो यूज फॉर टेस्ट डेटा एज वेल। इफ यू रिमेंबर फॉर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन जो भी हमारे स्टेप्स थे ट्रेन के लिए वही स्टेप्स थे टेस्ट के लिए। तो ये दो दो बार करना पड़ता है, लेकिन अगर मैंने उसके लिए एक पाइपलाइन बनाया, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर सारे स्टेप्स है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एंड अगर मैंने इसको रॉ ट्रेनिंग डेटा दिया तो रॉ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ये मॉडल ट्रेन होगा, ये मॉडल ट्रेन होगा। एंड अगर मैंने इसको टेस्ट डेटा दिया तो टेस्ट डेटा के ऊपर ये आपको वैल्यूज प्रेडिक्ट करके देगा, ये वैल्यूज आपको प्रेडिक्ट करके देने वाला है। सो दैट इज व्हाट इट मींस। सो लेट्स डू दिस इन कोडिंग साइड। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वो जो है ऑब्जेक्ट हम यूज करने वाले sklearn का, दैट विल सी। सो वो जो ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे फॉर पाइपलाइन, सो sklearn dot I think pipeline, we are having pipeline example, okay, no issues. Yes, so this is what we want. Okay, so this is what the object we are going to use. So this is name of class. So obviously इसका पहले हमें object बनाना पड़ेगा। ये जो pipeline object है ना, ये pipeline object क्या करता है? So let's we are having like ये object क्या करेगा? ये जो pipeline object है ना, ये क्या करेगा? ये पूरा आपका एक pipeline build करेगा। So let me, ये पूरा pipeline build करेगा, ये पूरा पाइपलाइन बिल्ड करेगा, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है कि स्टेप्स कौन से। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, एंड इट इज गोइंग टू जस्ट प्रोड्यूस योर आउटपुट ओवर हियर। एंड यहाँ से हम देंगे उसको रॉ डेटा, यहाँ पे हम इसको देंगे रॉ डेटा। सो ये काम है आपका ये पाइपलाइन ऑब्जेक्ट बनाने का। सो ये जो है ना, ये आपका पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर पाइपलाइन ऑब्जेक्ट, this is your pipeline object. So for example let's consider हमारे पास अभी स्केलिंग के लिए ऑप्शन है, so we can do use scalar. Actually scalar पहले नहीं होना चाहिए, so let me do this over here. So let's consider एक पाइपलाइन ऐसा बनाएंगे हम, जिस पाइपलाइन में यहाँ से हम डेटा देंगे, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स रहेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी दो स्टेप्स रहेंगे, एक होगा स्टैंडर्ड स्केलर एंड दूसरा होगा मॉडल। मॉडल मतलब आपका मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। सो ये बहुत सिंपलेस्ट पाइपलाइन है, वो हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो ये जो स्केलर है इसमें दो मेथड्स आपको दिखाई देंगे, दैट इज फिट एंड फिट ट्रांसफॉर्म, फिट एंड फिट ट्रांसफॉर्म। एंड ये जो मॉडल है इसमें आपको दिखाई देंगे दो मेथड, दैट इज फिट, एंड फिट के बाद में आपको दिखाई देंगे प्रेडिक्ट। उसके बाद में आपको ये भी दिखाई देगा, स्कोर भी दिखाई देगा, हमने स्कोर भी यूज किया है। सो काइंड ऑफ थिंग, फिट प्रेडिक्ट स्कोर काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो पाइपलाइन है ना, इसको जब आप यूज करोगे आपको बहुत बार, इफ यू हैव गॉन थ्रू पाइपलाइन ऑनलाइन मटेरियल, तो आपको दिखाई देगा होगा कि ये पाइपलाइन तो ठीक है हम बना सकते हैं, लेकिन देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल इंप्लीमेंटिंग पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन होता है ना, इस पाइपलाइन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट में फिट फंक्शन है, किस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। सो इसको कैसे अरेंज करें ये आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पाइपलाइन अगर आप बनाते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिट है क्या, ट्रांसफॉर्म है क्या, अगर फिट है ट्रांसफॉर्म है बाद में प्रेडिक्ट है क्या, तो किस सीक्वेंस में रखने। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है व्हाइल यूजिंग पाइपलाइंस। पाइपलाइन तो ठीक है हम समझ में आता है कि इस सीक्वेंस में रखना है, लेकिन यस पाइपलाइन में कौन से फंक्शंस यूज करने, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइपलाइन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स विद फाइनल एस्टिमेटर।
ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीजें आपको, यहाँ पे अगर आप ये आर्टिकल रीड करते हो तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर, एंड दूसरी एक बात है एस्टिमेटर। ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मर में ऑब्जेक्ट कौन से है, जिसमें ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर, जिसमें ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होता है उसमें होता है ट्रांसफॉर्मर। अभी एस्टिमेटर्स मतलब कौन से, एस्टिमेटर मतलब हमारे मॉडल्स, ये होते हैं एस्टिमेटर्स। सो अगर आपको कोई एक पाइपलाइन बनाना है, इफ यू वांट टू मेक एनी पाइपलाइन, तो उसमें क्या क्या होगा, ये एक ट्रांसफॉर्मर है। अभी ट्रांसफॉर्मर में कैन आई से दैट इम्प्यूटर भी आया, इम्प्यूटर मतलब मिसिंग वैल्यू फिल करने वाला। दूसरा एक ट्रांसफॉर्मर है दैट इज एनकोडर, मतलब आपका जो भी क्या बोल सकते हैं उसको हम, जो हम ऑरिजिनल जो भी व्हाट वी कैन से, जो कॉलम्स के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या तो कॉलम्स के एनकोडर, फीचर एनकोडर्स भी बोलते हैं उसको, वन हॉट एनकोडर भी बोलते हैं, वन हॉट एनकोडर, वन हॉट एनकोडर, इफ यू रिमेम्बर वन हॉट एनकोडर हमने यूज किया है। सो एनकोडर्स हुए, सो वो भी आपका ट्रांसफॉर्मर हुआ, क्योंकि अगर एनकोडर, वन हॉट एनकोडर का आपने क्लास देखा तो उसमें क्या है, डॉट फीड भी फंक्शन है एंड डॉट ट्रांसफॉर्म भी फंक्शन है। सो जिसमें डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो सारे बने ट्रांसफॉर्मर। एंड इसके बाद में आपका स्केलर है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्केलर, स्केलिंग, स्केलिंग में भी फीड भी है, ट्रांसफॉर्म भी है। एंड इसके बाद में लास्ट में आपका मॉडल, मतलब कोई भी होता है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हो सकता है, एक्सिबूस्ट हो सकता है, व्हाटएवर दैट, इसको हम ट्रांसफॉर्मर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेटर। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्रिएट द पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में जो इनिशियल स्टेप्स है वो होते हैं ट्रांसफॉर्मर, एंड इसका जो फाइनल स्टेप होता है ना, ये फाइनल स्टेप होता है एस्टिमेटर, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो ये ट्रांसफॉर्मर मतलब इम्पूटर, एनकोडर, स्केलर्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर, जिसमें फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड है। एंड एस्टिमेटर में क्या है, सिर्फ फिट मेथड है एस्टिमेटर में, ट्रांसफॉर्म नहीं है। एस्टिमेटर में सिर्फ फिट है, ट्रांसफॉर्म नहीं है। सो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, एस्टिमेटर मस्ट बी एट द लास्ट। तो देखते ये क्या बोल रहा है अभी, sequentially apply list of transformers and final estimator। देखो ये फाइनल एस्टिमेटर बोल रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ पाइपलाइन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है, जो भी मैंने अभी बोला वो। एंड that is they must implement fit and transform method. So you can just go through this uh, particular official documentation, या official documentation you can just see here, this is from sklearn.org। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या चीजें है, ठीक है, जैसे यू कैन सी पैरामीटर्स क्या क्या देना है, इसमें पैरामीटर्स देना है लिस्ट। अभी ये जो लिस्ट पैरामीटर है ना, इसमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, इसमें प्रोवाइड करना है लिस्ट, मतलब जो भी मैंने अभी ये पाइपलाइन बनाया था, 1 2 3 4 वट एवर नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया एंड ये एस्टिमेटर हो गया। सो ये जो है ना, इसका हमें एज ए लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, एज ए लिस्ट। सो पहले इम्प्यूटर का ये ऑब्जेक्ट बन गया, इम्प्यूटर का। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका फॉर एग्जांपल एनकोडर का। तीसरा ऑब्जेक्ट है स्केलर का। एंड लास्ट का ऑब्जेक्ट है एस्टिमेटर या तो मॉडल का। तो ये चारों ऑब्जेक्ट है ना, एज ए लिस्ट आपको पास करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस पैरामीटर स्टेप। सो जो भी स्टेप्स है हमें एज ए लिस्ट हमें पास करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। Then next is attributes, whatever attributes is not important for us. So the important thing for us is examples. See, in this example you can see over here, you can see here हम यूज कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। इसको कैन आई से दैट इट इज एस्टिमेटर, इट इज एस्टिमेटर, इट इज एस्टिमेटर। देन आफ्टर दैट स्टैंडर्ड स्केलर, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट लेने के लिए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट है, दैट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ पाइपलाइन। ये पाइपलाइन उन्होंने ऑब्जेक्ट लिया है। सो पाइपलाइन कहाँ से इंपोर्ट किया, sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन, वही हम अभी यहाँ पे वही हमें देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सो पहले उन्होंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में डेटा स्प्लिट किया,
डेटा मैं क्लासिफिकेशन का डेटा लिया, सो दिस इज जस्ट इंपोर्ट द क्लासिफिकेशन डेटा, उसको हमने स्प्लिट किया एक्सटेंड एक्सटेस्ट में, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे बनाया है पाइपलाइन। सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर, दिस इज योर पाइपलाइन ऑब्जेक्ट। अभी पाइपलाइन ऑब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दिस इज ब्रैकेट that is enclosed over here, so that is what the list is, that is what the list is, list of what, list of transformers and estimator। तो अभी यहाँ पे in this simple example they have used just only one transformer, that is what scalar, एंड उसके बाद में एस्टिमेटर। सो देखो ये एस्टिमेटर है ना सबसे लास्ट में, सो दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, एक एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट हियर, ये जो ऑब्जेक्ट बना पाइपलाइन का उसको बोला हमने पाइप। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये पाइप का, जिसमें दो चीजें हैं, पहला है स्केलर एंड दूसरा है यस सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो इन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं इसको पाइप। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको हम बोल रहे हैं पाइप। तो इस पाइप को अगर मैंने फिट बोला, पाइप डॉट फिट, तो इसमें क्या होगा, पहले डेटा यहाँ पे तैयार होगा एंड उसके बाद में जो भी डेटा है दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू टू दिस सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, जहाँ पे वो ट्रेन होगा, क्योंकि फिट बोला है। अगर आपने यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म बोला तो यहाँ पे तो ठीक है फिट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होता, इसलिए वो एरर देगा। तो दोनों में फिट है। एंड कीप इन माइंड ये जो फिट है ना, एक्चुअली ये हमें लास्ट एस्टिमेटर को ध्यान में रख के देना पड़ता है, क्योंकि अगर ये फिट मेथड लास्ट एस्टिमेटर में है या तो लास्ट ऑब्जेक्ट में, तभी ये काम करेगा। इसके पहले वाले तक, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्केलर भी है, इम्प्यूटर भी है, देन एनकोडर भी है, तो वहां पे फिट ट्रांसफॉर्म पूरा अप्लाई होता है, फिट ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे मैंने यूज किया है, ये फंक्शन किसके रिस्पेक्टिव होता है, ये लास्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव होता है। सो ये फिट फंक्शन ये एसवीसी के रिस्पेक्टिव है, ठीक है, ये एसवीसी के रिस्पेक्टिव है। सो ये पाइप नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये जो डॉट फिट फंक्शन है ना, ये जनरली एसवीसी में होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जब आपका पाइप बनेगा, उस पाइप को हमने यहाँ पे किया है ट्रेन। ट्रेन करने के बाद, ट्रेन करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेन करने के बाद हम इसको स्कोर भी निकाल सकते हैं, दैट यू कैन सी ओवर हियर, पाइप का स्कोर भी निकाला है। देखो स्कोर के लिए टेस्टिंग का डेटा दिया है, ट्रेनिंग के लिए मतलब फिट के लिए ट्रेनिंग का डेटा दिया है, स्कोरिंग के लिए टेस्ट का डेटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डॉट प्रेडिक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है ना पाइप डॉट प्रेडिक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रेडिक्ट है हम किसको देख रहे हैं, ये जो पाइप मतलब लास्ट, ये जो प्रेडिक्ट फंक्शन है ये किस में देखेंगे, हम लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में देखेंगे सिर्फ इसमें। सो इसमें प्रेडिक्ट है तो पाइप डॉट प्रेडिक्ट, एंड इसको हम दे सकते हैं एक्स टेस्ट, एंड दैट वी कैन फॉलो दैट आउट, एंड ये आपको देगा फाइनल इंफॉर्मेशन। सो इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको फिलहाल तो। सो just we will just go and do coding of it। so इसके लिए मैं क्या करूंगा, will use the same data of yesterday। simply मैं आपको करके दिखाता हूँ what it is। so इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पहले import करना पड़ेगा pandas as pd, import pandas as pd, then after that from sklearn dot pre processing आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर, एंड फ्रॉम sklearn dot ensemble import random forest regressor। नहीं, आई थिंक इट इज क्लासिफिकेशन डेटा, बैंक नोट वाला, ठीक है। सो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट df इज गोइंग टू बी pd डॉट रीड csv, जो भी आपका
डेटा है बैंक नोट का, that we are going to just load here. That names of columns we need to give. The names of columns are like A, then second is B, then C, then D, and your last column that is Y column. So just keep in mind last is Y column. You can just see df dot head over here. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, हम पाइपलाइन बनाते हैं सिंपली। अभी इसमें मुझे क्या क्या करना है, इसमें मुझे क्या क्या करना है, पहले मुझे तो करना है स्केलिंग, एंड स्केलिंग करने के बाद मुझे करना है मॉडल ट्रेन। सो सिंपल पाइपलाइन है जिसमें सिर्फ 2 स्टेप्स है, आप इससे ज्यादा भी स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ 2 ही स्टेप्स ले रहा हूँ पाइपलाइन में। तो पहले पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है पाइप, यू कैन गिव एनी नेम। सो पाइपलाइन, पाइपलाइन हमने इंपोर्ट किया ना, नहीं पाइपलाइन इंपोर्ट नहीं किया, सो वी नीड टू इंपोर्ट दैट। सो फ्रॉम sklearn dot pipeline import pipeline। ठीक है, सो जस्ट इंपोर्टेड एंड यू कैन जस्ट हियर पाइपलाइन। अभी इसमें क्या देना पड़ता है आपको, स्टेप्स देने पड़ते हैं, कौन से स्टेप्स है। सो हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स है, सो 2 स्टेप्स है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट्स, दैट इज लिस्ट ऑफ स्टेप्स। पहला स्टेप ये टपल होता है, दूसरा स्टेप भी टपल होता है। अभी टपल मतलब आप बोलोगे सर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बताओ, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नाम भी देना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल मेरा पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है स्केलर, तो ये कैसे बनाते हैं स्केलर का ऑब्जेक्ट, दैट इज स्टैंडर्ड स्केलर, ये ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या हो गया द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्टेप हो गया, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय वन टपल। सेकंड जो स्टेप है वो है आपका मॉडल क्रिएट करना, तो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज मॉडल, एंड ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर से। सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, सो दिस 2 स्टेप्स आई जस्ट हैव प्रोवाइडेड। सो मैंने पाइप क्रिएट किया। अभी ये जो पाइप है इसको पहले करते हैं ट्रेन। सो पाइप डॉट, अभी फिट फंक्शन होना चाहिए। फिट फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। इसके पहले वाले तो क्या हो गए, फिट ट्रांसफॉर्म दोनों हो गए, लेकिन ये जो फिट है ना, ये फिट इसमें होना चाहिए। सो जस्ट कीप इन माइंड डॉट फिट, एंड फिट करने के लिए व्हाट विल डू प्रोवाइड, जो डेटा फ्रेम का है वो x प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ x एंड y बाजू में निकालता हूँ। सो x इज गोइंग टू बी x comma y, so x is going to be df of, that is list of columns, that is a b c d। तो ये जाएगा x में, एंड y में क्या जाएगा df of y। ठीक है, तो ये x एंड y में जाएगा, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो पाइपलाइन डॉट फिट करते टाइम पे x कॉमा y देना है। तो क्या क्या होगा, पहले ये x का क्या होगा, स्केलिंग होगा, स्केल एंड ट्रांसफर होगा, मतलब फिट एंड ट्रांसफर होगा ना। उसके बाद में ये जो डेटा है ना, पूरा डेटा, ये पूरा डेटा जाएगा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को। सो मैंने बताया था कि ये जो फिट है ना, डॉट फिट, ये जो भी कुछ फॉर्मेट है इसके ऊपर लागू होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सो इसको फिट करते हैं। सो ये फिट हो गया, यू कैन जस्ट सी हियर, ये ऐसे फिट हो गया, आपने देखा होगा। एंड इसके बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पाइप है ना, इसके ऊपर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। फॉर अभी मैंने ट्रेंड स्प्लिट तो नहीं किया है, लेकिन अगर ट्रेंड स्प्लिट किया होता तो यहाँ पे टेस्ट यूज करते। तो मैं प्रेडिक्ट क्या करता हूँ, आपके एक्स वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता हूँ। देखो ये प्रेडिक्ट फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बहुत बार हाईलाइट कर रहा हूँ। सो प्रेडिक्ट करने के बाद जस्ट यू आर गोइंग टू गेट जीरोस एंड वंस एज अ क्लासेस, बिकॉज 2 क्लासेस है बैंक नोट ऑथेंटिकेशन में। इसके साथ और क्या है हमारे पास, पाइप डॉट स्कोर नाम का भी फंक्शन है। स्कोर में हम किसका देखेंगे, ट्रेंड डेटा का स्कोर करेंगे देखो, बिकॉज वी हैव नॉट स्प्लिटेड डेटा आउट, तो ये ट्रेनिंग के डेटा पे स्कोर देखेंगे। एंड डॉट पाइप डॉट, सॉरी पाइप, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 100%। सो इसका मतलब ये रैंडम फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रेनिंग का जो एक्यूरेसी है 100 ऑलमोस्ट 100% ही
आएगा यहाँ पे. So this is what just what the pipeline is. This is just what the pipeline is. अगर आपको स्केलिंग के पहले और कुछ ट्रांसफॉर्म्स ऐड करने तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इम्प्यूटर ऐड किया. इम्प्यूटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि इम्प्यूटर कैसे यूज करते हैं. सो प्री प्रोसेसिंग में ही इम्प्यूटर होता है. प्री प्रोसेसिंग में ही इम्प्यूटर होता है. सो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन यूज मोर हियर. लेकिन सिर्फ द प्रॉब्लम इज विथ ये पाइपलाइन डिफिकल्ट कब हो जाता है, क्योंकि काफी बार फॉर एग्जांपल गलती से ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने फिट के बजाय फिट ट्रांसफॉर्म लिखा होता. फिट ट्रांसफॉर्म काम करेगा क्या ये? जैसे ये काम नहीं करेगा. ये क्या बोल रहा है? रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्म. क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जब मैं ये फंक्शन पाइपलाइन के ऊपर ये फंक्शन यूज करता हूँ ना, तो ये फंक्शन ये लास्ट एस्टिमेटर के पास होना ही चाहिए. सो ऑब्वियसली फिट ट्रांसफॉर्म रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के पास नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ये बोल रहा है इसके पास नहीं है. दैट इज इट. दिस इज द ओनली थिंग अबाउट पाइपलाइन. पाइपलाइन एक्चुअली उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, लेकिन whenever we are going to use pipeline you just follow this. मतलब ये आगे मैंने आपको दिखा नहीं, you can just see here. देखो फिट फंक्शन. फिट फंक्शन में क्या होना चाहिए? फिट ऑल ट्रांसफॉर्म वन आफ्टर अदर ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड देन फिट द ट्रांसफॉर्म डेटा यूजिंग फाइनल एस्टिमेटर. सो ये फाइनल एस्टिमेटर के ऊपर ये फंक्शन होना ही चाहिए. फिट प्रेडिक्ट. फिट प्रेडिक्ट में भी क्या बोल रहा है हो? ये फाइनल एस्टिमेटर इन द पाइपलाइन, ये फाइनल एस्टिमेटर पे ये अवेलेबल होना ही चाहिए. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. फिट ट्रांसफॉर्म भी है. सो same functions are available in all kind of what we can say transforms and estimators. And that's it. ठीक है. if you have any doubt please ask. ML pipeline में कुछ भी नहीं. it is just and one more thing also. If any interviewer asks you the question about pipeline, ML pipeline, so it doesn't mean that you just have to tell about this thing. Sorry. You have to tell that all the steps that are required from starting to end